Hello friends, welcome to ACE UPSC. So in this lecture video series we will be discussing chapter 5 that is land degradation. जैसे कि आपको पता है we are discussing उड़ान magazine of environment and ecology for prelims 2025. Okay, so let's start land degradation without wasting our moment. Land degradation means reduction or loss in arid, semi-arid and dry subhumid areas of biological or economic productivity and complexity of rain-fed cropland, irrigated cropland or range, pasture, forest and woodland resulting from land uses or from a process of combination of processes including processes arising from human activities and habitations patterns such as soil erosion which is caused by soil erosion कैसे होगा wind or water deteriorations of physical chemical and biological or economic property of soils and long term loss of natural vegetation. Okay, उसके बाद there are number of interrelated land degradation component that is all of which may contribute to decline in agricultural production. That is the most important according to Douglas 1994 cities by cited by फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1999. उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन देखा जाए तो डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ सॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोशन एंड चेंज इन द हाइड्रोलॉजिकल बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. उसके बाद वेजिटेशन डिग्रेडेशन में देखा जाए तो डिक्लाइन इन क्वांटिटी एंड और क्वालिटी ऑफ नेचुरल बायोमास एंड डिक्रीज इन वेजिटेटिव कवर ग्राउंड कवर. उसके बाद वाटर डिग्रेडेशन दैट इज डिक्लाइन इन क्वालिटी एंड और क्वालिटी ऑफ बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. उसके बाद क्लाइमेट डिटोरिएशन देखा जाए तो चेंज इन माइक्रो एंड क्लाइमेट macro climate conditions that increases the risk of crop failure. उसके बाद loss to urban industrial development that is decline in total area of land used or with potential for agricultural productions as a result of arable land being converted to urban industrial and infrastructure uses. उसके बाद land degradations has both once on site and off site effects. that is on site effect अगर देखा जाए तो the lowering of productivity capacity of land causing either reduced outputs that is crop yield, livestock yield or the need for increased input. और off site effect देखा जाए तो off site effect of water erosion occurs through changes in water regimes including decline in river water quality, sedimentation of river beds and reservoir. The main off site effects of wind erosion is overblowing and sand deposition by FAO 1994. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. तो फ्रॉम 2015 टू 19 30.51 मिलियन हेक्टर ऑफ इंडिया टोटल रिपोर्टेड लैंड वाज डिग्रेडेड. तो कितना लगभग 30.51 मिलियन हेक्टर. और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन दैट इज UNCCD में कहा गया है दिस मीन्स दैट 9.45% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास वॉज डिग्रेडेड एज ऑफ 2019 और दिस वॉज 4.42% इन 2015. उसके मेजर कॉजेज फॉर लैंड डिग्रेडेशन में देखा जाए तो कॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड्स वाटर इरोशन, विंड इरोशन, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन, वाटर लॉगिंग, सैलिनेशंस, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड रेंज लैंड डिग्रेडेशन. अब डिफॉरेस्टेशन में देखा जाए तो रूट्स ऑफ ट्री एंड प्लांट bind the soil particles and regulate water flows preventing erosion. उसके population pressure leads to increased demand for forest resources resulting in deforestation. फिर deforestation makes soil vulnerable accentuating erosions in regions like मतलब accentuating मतलब erosion को और ज़्यादा speed up कर रहा है इन कहाँ पे शिवालिक रेंज में कोर्स ऑफ पंजाब एंड चंबल वैली रिवरेंस. उसके बाद major causes of deforestation includes shifting cultivation, demand for raw material in industries like paper, plywood etc. उसके बाद open cast mining, plantation agriculture for commodities like cocoa, coffee, टी, शुगर, पाम, रबर एक्सेट्रा. अब सॉइल सैलिनिटी एंड सॉइल अल्कलिनिटी में देखा जाए तो सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स दैट इज टॉप सॉइल इम्प्रेग्नेटेड विथ सलाइन एंड अल्कलाइन एफ्लोरेसेंस दैट इज सॉइल पार्टिकल्स. अब कॉसेस ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी देखा जाए तो रॉक फ्रेगमेंट्स वेदरिंग इनटू सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट्स एक्सेट्रा मेक सॉइल सलाइन. फिर ओवर इरीगेशन इन कैनाल इरीगेटेड रीजन लाइक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एक्सेट्रा लीड्स टू सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इश्यूज. एग्जाम्पल में देखा जाए तो इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान हैज कॉज्ड सीरियस सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी प्रॉब्लम. वाटर लॉगिंग देखा जाए तो जो लीड करता है मतलब विच इंक्रीजेस सॉइल सैलिनिटी डिग्रेडेशन द क्वालिटी ऑफ लैंड. उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स टू ट्रीट सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी. तो सबसे पहले अगर हेडलाइन देखते हैं उसमें तो क्या होगा ड्रेनेज आउटलेट, लीकेज प्रिवेंशन, उसके बाद जुडिशियस इरीगेशन, वेजिटेटिव कवर इंप्रूवमेंट, जिप्सम एप्लीकेशंस और रिमूविंग अल्कलाइन बाय एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड और
और एसिडिक फॉर्मिंग सब्सटेंस लाइक सल्फर एंड पायरेट। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज आउटलेट में देखें तो आउटलेट फ्रॉम लैंड्स, आउटलेट फॉर लैंड्स टू ड्रेन एक्सेस वाटर लोअरिंग द वाटर टेबल। फिर लीकेज प्रिवेंशन में देखा जाए तो फ्रॉम कैनल्स, टैंक्स एंड वाटर बॉडीज थ्रू लाइनिंग। फिर जुडिशियस इरिगेशन टू अवॉइड वाटर लॉगिंग। फिर वेजिटल कवर इम्प्रूवमेंट विथ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स टू प्रिवेंट फ्यूचर डिग्रेडेशन और इम्प्लीमेंट क्रॉप रोटेशन में। फिर जिप्सम एप्लीकेशन टू कन्वर्ट alkalis into soluble compound, और फिर removing alkali by adding sulfuric acid or acid from forming substance like sulfur and pyrite. फिर promote mild acid formation by adding organic residue such as rice husk and straw through decomposition. उसके बाद नेक्स्ट हमारा desertification, that is spread of desert like conditions in arid और semi arid areas due to human influences और climatic change. अब affected region देखा जाए तो arid and semi arid region, that is between the Indus and Aravalli range, और causes देखा जाए तो uncontrolled grazing, recklessness, trees felling and growing populations and climate change. A faulty method of agriculture देखा जाए तो like plowing along the slopes, monoculture and lack of crop rotation, shifting cultivation etc. leads to degradation of land. अब soil erosion देखा जाए तो agents like wind, water degrade land by removing the fertile topsoil which contains essential nutrients and organic matter needed to plant growth. Over time it can cause land to become barren and exacerbate desertification, making the land unsuitable for agriculture and other uses. अब coastal erosion देखा जाए तो उसका causes क्या होगा तो wave along the coast, storm surge during the cyclone, tidal bores in estuaries. effect में देखा जाए तो heavy damage to the coastal soils, destructions of beaches, extensive damage to the surrounding banks during the cyclone and tidal bores. अब प्रिवेंशन कैसे किया जाए तो ग्रोनीन्स, दैट इज शोर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर बिल्ट परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन्स ऑफ द कोस्ट। उसके बाद जैसे मुंबई में है ना जुहू बीच के पास, उसके बारे में बता रहा है, टेट्रापॉड शायद बोलते हैं उसको। फिर सर्व्स एज अ क्रूशियल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इन कोस्टल प्रोटेक्शंस ऑफ स्प्रिंग्स एंड इफेक्टिव मीन्स टू कॉम्बैक्ट इरोशंस एंड प्रिजर्व द नेचुरल फीचर ऑफ द बीचेस एंड शोर लाइन्स। उसके बाद कॉजेस ऑफ कोस्टल इरोशन, तो कोस्टल इरोशन का कॉज क्या होगा, जैसे नेचुरल फैक्टर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस द ईस्टर्न कोस्ट, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल फेसेस मोर इरोशन ड्यू टू रफ सीज एंड इंटेंस टाइड मूवमेंट इन बे ऑफ बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक में साइक्लोनिक एक्टिविटी, दैट इज द ईस्ट कोस्ट, दैट इज ईस्टर्न कोस्ट एक्सपीरियंसेस मोर इरोशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट साइक्लोनिक एक्टिविटी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, दैट इज जहाँ पे मुंबई वाले गुजरात वाले रीजन पे या फिर केरला वाले रीजन पे, दैट इज वेस्टर्न घाट वाले रीजन पे, वहाँ पे थोड़ा कम देखा गया है साइक्लोनिक एक्टिविटी एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल वाले रीजन पे। तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, दैट इज पोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन अलोंग कोस्ट लाइन कंट्रीब्यूट्स टू इरोशन, और ड्रेजिंग एंड सेडिमेंट डंपिंग, दैट इज इम्प्रॉपर प्रैक्टिस सच एज ड्रेजिंग इन पोर्ट्स एरियाज एंड डंपिंग सेडिमेंट्स इनटू द डीप सी कैन इंटेंसिफाई इरोशन। अब इफेक्ट ऑफ कोस्टल इरोशन, सबसे पहले वल्नरेबिलिटी ऑफ कोस्ट लाइन्स, दैट इज वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल विद सिग्निफिकेंट पोर्शन अंडरगोइंग इरोशन। फिर कोस्टल इरोशन कैन लीड टू लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग roads and other construction near the coastline. फिर areas with high erosion like विशाखापट्टनम faces challenges that is affecting local populations and livelihood. अब management techniques देखा जाए तो dynamic approach to beaches, that is treat beaches as a dynamic landform and part of seas, necessitating continuous nourishment to act as an cushion against high wave action. फिर submerged breakwater, that is constructing a submerged breakwater about 500 meters from the shoreline can break wave energy and prevent erosion caused by wave current. फिर coastal structure like sea walls, revetments and groins to mitigate erosion effects. उसके बाद beach nourishment, that is dredging sand from the sea and depositing it on eroding beaches helps create a wider beach, reducing the impact of erosion. उसके बाद National Center for Coastal Research, that is NCCR, attached office of Ministry of Earth and Science, that is monitors shorelines change along the Indian coast, providing crucial data for understanding erosional patterns. उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, दैट इज NCSCM रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मैंडेटेड टू मैनेज द इंडियन कोस्ट सस्टेनेबली, फोकसिंग ऑन द कंजर्वेशन एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस पोस्ड बाय इरोशन। उसके बाद ग्लेशियल इरोशन देखा जाए तो ग्लेशियल इरोशन refers to the process of landform modifications and soil removal caused by the slow movement of glacier, primarily occurring in the polar region and high mountainous area.
उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए। सबसे पहले होगा मेथड में क्रॉप रोटेशन, जिसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा तो कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ईच ईयर टू प्रिवेंट सॉइल एग्जॉशंस। उसके बाद इसका की बेनिफिट तो रेस्टोर लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल लेग्यूम्स एड्स नाइट्रोजन और मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। उसका नेक्स्ट मेथड क्या होगा तो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज, दैट इज यूजिंग क्रॉप दैट मैच्योर फास्टर। उससे बेनिफिट क्या होगा तो रिड्यूसेस सॉइल प्रेशर एंड अलाउज फॉर क्विकर क्रॉप साइकिल्स। उसके बाद नेक्स्ट मेथड स्ट्रिप क्रॉपिंग, दैट इज प्लांटिंग अल्टरनेट पैरेलल स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो उससे क्या फायदा होगा टॉल क्रॉप्स एक्ट्स एज ए विंड ब्रेक, स्ट्रिप्स स्लो वाटर रन ऑफ और रिडक्शन रिड्यूसिंग इरोशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटर क्रॉपिंग, दैट इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज एंड इन डिफरेंट टाइम्स, जो क्या करेगा प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन इंड्यूस्ड इरोशन एंड वॉशआउट्स। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा कंटूर प्लोइंग। उससे क्या फायदा होगा तो प्लोइंग अक्रॉस द स्लोप्स ऑफ हिल परपेंडिकुलर टू द स्लोप विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग रन ऑफ, प्रिवेंट गली फॉर्मेशन एंड मिनिमाइज विंड इरोशंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेकिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो उससे क्या फ़ायदा होगा तो प्रोमोटिंग सेटल्ड एग्रीकल्चर इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिससे क्या फ़ायदा होगा इन्वॉल्व्स रिसेटलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ विथ नेसेसरी प्रोविजंस टू एनकरेज स्टेबल फार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मल्चिंग। तो वो कैसे किया जाएगा तो कवरिंग बेयर ग्राउंड विथ ऑर्गेनिक मैटर, एग्जाम्पल ग्रासेस, क्लिपिंग, स्ट्रॉस, जिससे व्हाट विल हेल्प इट आउट सो द प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोशन, reduces compactions and conserves moistures। उसके बाद एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशंस एंड डेजर्टिफिकेशन। तो कैसे किया जाएगा तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दैट इज यूएनसीसीडी, ये कब पूछा गया था यूपीएससी 2016 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा तो प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब एंड रेटिफिकेशन कब किया हो गया तो इमर्ज फ्रॉम 1992 रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, और एस्टैब्लिशमेंट इसका देखा जाए तो 1994 इन पेरिस, और रेटिफाइड बाई 196 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंडिया रेटिफाइड इन 1996, किसको यूएनसीसीडी को। ओके तो एक बार फिर से अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है तो यूएनसीसीडी के बारे में बताया जा रहा था। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 1992 कहाँ पे तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में किया गया था, और उसका एस्टैब्लिश इन पेरिस 1994 में, और 196 कंट्रीज टोटल रेटिफाई कर दिए हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ, और इंडिया रेटिफाइड 1996 को। ठीक है, अब पर्पस एंड सिग्निफिकेंस इसका यूएनसीसीडी का क्या रहेगा तो एंश्योर्स ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट लैंड डिग्रेडेशन और ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट development and sustainable land management. अब national action program, that is NAP, countries required to develop NAP using a bottom up approach to restore degraded lands. अब conference of parties, that is COP, ये है क्या तो supreme decision making body of UNCCD held every 2 year. अब reviews convention implementation, formulates strategies and coordinate work with other agencies. Recent COPs helps in Ordos city, that is in China, New Delhi in India and Abidjan in Côte d'Ivoire. उसके बाद फ्यूचर मीटिंग कब होगा तो COP मतलब COP16 इन सऊदी अरेबिया 2024 एंड COP17 इन मंगोलिया 2026। ये आपको ध्यान रखना है, COP16 कहाँ पे सऊदी अरेबिया जो कि कब है 2024 को, और COP17 मंगोलिया में जो कब होगा 2026। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियाज़ कमिटमेंट तो COP14 जो कि इंडिया प्रेसिडेंट, दैट इज रेस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर वाज द थीम, और COP15 जो हुआ था इंडिया रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू रेस्टोरिंग 26 मिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। अब जेंडर मेन स्ट्रीम, दैट इज इट वॉज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और UNCCD इन 2017। दिस वॉज पार्ट ऑफ UNCCD जेंडर एक्शन प्लान GAP विच वॉज एंडोर्स्ड ड्यूरिंग COP13 इन ओड्रोस, चाइना। उसके बाद UNCCD mandates gender mainstream for achieving land degradation neutrality LDN targets, aims to advance gender equality, enhance women's access to land and resource, reduce poverty and restores ecosystem। अब UNCCD impact, इसका impact क्या होगा तो drives sustainable development goal 15 and land degradation neutrality, that is LDN। फिर initiatives including the drought initiatives and the Great Green Wall initiatives। अब key outcomes of
COP15 ऑफ UNCCD। तो की आउटकम क्या होगा इसका? थीम्स में देखा जाए तो लैंड लाइफ लीगेसी दैट इज फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रोस्पेरिटी, और इम्फेसाइज्ड ड्राउट रेजिलियंस एंड लैंड रेस्टोरेशन फॉर फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। जिसमें मेजर एग्रीमेंट क्या होगा इसका? तो ये ड्राउट मैनेजमेंट इनिशिएटिव एक तरह का, जो कैसे किया गया होगा? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप किया गया होगा, जिसका टेनवर क्या रहेगा? 2022 टू 2024। उसके बाद 2 ट्रांसिशंस फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव ड्रॉट मैनेजमेंट। ओके, अब लैंड रिस्टोरेशन कमिटमेंट, रेस्टोरेशन ऑफ 1 बिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। उसके बाद रिपोर्ट रिलीज्ड ड्रॉट इन नंबर दैट इज 2022 अंडरस्कोर द नीड फॉर प्रायोरिटाइजिंग ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस। जिसका की डिक्लेरेशन देखा जाए तो अबिडजन कॉल्स दैट इज हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट प्लेज टू प्रमोट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद अबिडजन डिक्लेरेशन में जो क्या फोकस है? तो फोकस ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी टू एंश्योर इफेक्टिव एंड लैंड रेस्टोरेशन। और लैंड लाइफ एंड लीगेसी डिक्लेरेशन में एड्रेस्ड फाइंडिंग फ्रॉम द UNCCD ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 रिपोर्ट, a reference to COP13 2019, that is the Delhi declaration emphasized better land management and assesses highlighting gender sensitivity transformative initiative। land degradation neutrality that is LDN definition में देखा जाए तो LDN involves maintaining or achieving or enhancing the quantity and quality of land resources to support ecosystem services and food security. It focuses on halting and degradations and restoration of degraded areas। जिसका की concept क्या होगा? address growing competition for limited land resources, promote sustainable land management by reversing degradations through promote sustainable land management by reversing degradation through restoration effort, और help prevent social instability, poverty, conflict and migration। अब implementation उसके बाद सपोर्ट्स बाई इंटरनेशनल फ्रेमवर्क सच एज UN कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम दैट इज UNEP। ग्लोबल प्रोसेस देखा जाए तो ओवर 120 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ LDN टारगेट सेटिंग प्रोग्राम, और सिग्निफिकेंट एडवांसेस हैव ऑकर्ड सिंस द अडॉप्शन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये है क्या? तो ये लॉन्च कब हुआ था? 2007 को बाय अफ्रीकन यूनियन अक्रॉस 22 अफ्रीकन कंट्रीज। और एम इसका क्या था? तो रिस्टोर 100 मिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड और सिक्वेस्टर 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन and create 10 million green jobs by 2030। अब China's successful community engagement in green desert serves as a model for initiative। China has converted the Gobi Desert through a massive tree planting project called Great Green Wall और 3 North Shelter Belt program। अब देखते हैं, देखो मान लो अगर ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव देखा जाए ना, तो देखो मॉरिटानिया, सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, छद, सूडान, इथ्रिया, इथोपिया, जिबूटी, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड है। अब UNCCD ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, तो लॉस ऑफ क्रॉप लैंड ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन इज प्रोजेक्टेड टू कॉज द लॉस ऑफ 1.6 to 3.3 मिलियन हेक्टर ऑफ प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड एनुअली 2000 to 2030। अब रिजल्ट इन 6% प्रोडक्शन लॉस इन एशिया एंड 9% ड्रॉप इन अफ्रीका। अब इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मीट कंजप्शन दैट इज राइजिंग मीट कंजप्शन puts pressure on land resources, or reducing average meat consumption can benefit human health and address climate change। अब demand for land intensive food contribute to crisis like land scarcity and food insecurity। अब water scarcity देखा जाए तो projected water demand to surpass extraction capacity by 40% by 2030। 2/3 of the world population is expected to live in water stressed countries by 2025। और agricultural वाटर डिमांड इज सेट टू बी डबल बाय 2050। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्रॉट देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग नेक्सस बिटवीन द लैंड यूज एंड ड्रॉट। उसके बाद UNCCD स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फॉर 2018-2030 इंक्लूड्स ड्रॉट एज अ फोकस और इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रॉट स्मार्ट लैंड मैनेजमेंट विदाउट
विद इन सस्टेनेबल एंड लैंड मैनेजमेंट इंटरवेंशंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ $1.8 ट्रिलियन इन क्लाइमेट अडेप्शन मेजर्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड डीम्ड नेसेसरी फॉर tangible transformation or desertification. From conservation perspective, that is desertification refers to land degradation in arid, semi-arid, dry, subhumid areas, not natural desert expansion or gradual loss of soil productivity, making crop cultivations impossible. अब importance of reversing land degradation में 34% of Earth's land surface and half of the farmland in dry land. Over 2 billion peoples and half of the world's livestock depend on these lands. A thematic report on rangelands and pastoralist of UNCCD, ये है क्या? तो रेंज लैंड डिग्रेडेशन ये है क्या? तो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ ग्लोबल रेंज लैंड आर डिग्रेडेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशंस ग्रोथ, लैंड यूज चेंज एंड फार्मलैंड एक्सपेंशन। तो ये कितना है? 50%। उसके बाद लो पब्लिक अवेयरनेस, तो लोगों को पता भी कम इसके बारे में। दैट इज डिस्पाइट देयर क्रूशियल इकोलॉजिकल रोल, रेंज लैंड डिग्रेडेशन रिसीव्स लिटिल पब्लिक अटेंशन कंपेयर टू डिफॉरेस्टेशन। अब इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो इकोनॉमिक रोल ऑफ पैस्चरलिस्ट, दैट इज पैस्चरलिस्ट significantly contribute to economy through livestock rearing and milk production. लेकिन देखो, the contribution of livestock in total agriculture and allied sector gross value added has increased from 24.38% in 2014 to 2015 to 30%, 30.23% in 2020 to 23 at current price. Livestock sector contributed 5.50% of total GVA in 2022 to 23 at current price. A pastoralist rights and recognitions, that is over 20 million pastoralists including communities like the Maldaharis, Van Gujars, Rabaris depends on grassland, shrubs and plateaus. They require better recognitions of their rights and improved market access. उसके बाद marginalization issues देखा जाए तो pastoralists face marginalization and limited policy influence resulting in uncertain access to common land and land rights. अब grassland protection in India में देखा जाए तो neglect and threats, that is grassland are, देखो मतलब ये बता रहा ना क्या neglects और threats उसको हुआ है एक्चुअल में grassland को। तो सबसे पहले grasslands are among the most threatened ecosystem but are often overlooked in conservation effort. That is policies favor forestry based interventions converting natural grassland into plantation or protected grassland cover less than 5% of India's total area, shrinking from 18 to 12 million hectare between 2005 to 2015. अब सक्सेस स्टोरी देखा जाए तो लीगल एम्पावरमेंट, दैट इज द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये क्या कहता है? ये एम्पावर किया है पैस्टरलिस्ट को। फॉर इंस्टेंस वन गुज्जर्स जो है ना, वो क्या किए हैं? दे गेंड ग्रेजिंग राइट्स एंड लैंड टाइटल्स इन राजाजी नेशनल पार्क, कोर्ट रूलिंग। उसके बाद पॉलिसी एडवांसेस देखा जाए तो देयर इज इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द सोशियो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्चरलिज्म और प्रोग्राम लाइक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रमोट सस्टेनेबल पैस्चरल प्रैक्टिस एंड कम्युनिटी वेलफेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ड्रॉट। तो ड्रॉट से क्या है? तो एज डिफाइंड बाय द IMD, drought is consequences of natural reduction in amount of precipitation for a long period of time, मतलब बारिश की कमी। फिर it is associated with other climatic factor like high winds and temperature or low relative humidity. These factors can aggravate the severity of the drought event. अब drought year देखा जाए तो a year in which the overall rainfall deficiency is more than 10% of long period average value, that is LPA value, that is positive in greater than 20% of its area and affected by drought conditions either moderate or severe or combined moderate and severe. उसके बाद LPA, that is long period average में देखा जाए तो ये है क्या? तो it is the rainfall recorded over a particular region for a given interval, that is like a month or season, averaged over a long period of time like 30 years or 50 years. फिर all India severe drought area, that is when the spatial covers of drought is greater than 40%. अब टाइप्स ऑफ ड्रॉट, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स, फिर देखेंगे डिस्क्रिप्शन, फिर की इम्पैक्ट उसका क्या है। तो टाइप्स में देखा जाए तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट्स, तो वो क्या रहेगा? तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनसफिशिएंट एंड अनइवनली
डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ओवर टाइम एंड स्पेस। अब की इम्पैक्ट देखा जाए तो लीड्स टू रिड्यूस्ड प्रेसिपिटेशन एंड पोटेंशियल लॉन्ग टर्म वाटर शॉर्टेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल ड्रॉट, तो प्रोलॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेनफॉल रिजल्टिंग इन लो सॉइल मॉइस्चर इनसफिशिएंट फॉर क्रॉप ग्रोथ। और की इम्पैक्ट उसका क्या रहेगा, कॉजेस क्रॉप फेलियर, एरियाज विथ मोर देन 30% ऑफ इरीगेटेड ग्रॉस क्रॉप लैंड एरियाज एंड लेस अफेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, दैट इज डिक्लाइन इन वाटर लेवल, रिजर्वायर, लेक्स, एक्विफर्स फॉलिंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। वहीं पे उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट इन रिड्यूस्ड वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इकोलॉजिकल ड्रॉट, दैट इज वाटर शॉर्टेज लीडिंग टू रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी इन नेचुरल इकोसिस्टम, जिसका मेन कॉज क्या रहेगा, causes ecological distress damaging the ecosystem and biodiversity। उसके बाद ड्रॉट prone area in India severity and disruption, तो ये क्या रहेगा, तो as per UNCCD 36.8% of land in India is drought prone and about 83.85% of population is exposed to drought। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता ना कि प्रीलिम्स में ऐसा नहीं ही पूछेगा, हो सकता है दे माइट आस्क इन वन वर्ड टर्म्स और इन वन स्टेटमेंट, सो यू शुड हैव एन आइडिया। तो लगभग 40% है क्या, लैंड इज ड्रॉट प्रोन, और उसका डबल सीधा 80% आर एक्सपोज टू ड्रॉट पीपल्स। ओके, फिर सिवियरिटी बेस्ड ऑन रीजनल क्लासिफिकेशन, दैट इज एक्सट्रीम ड्रॉट जोन, तो वेस्टर्न राजस्थान, मरुस्थली एरियाज वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स एंड गुजरात कच्छ रीजन। उसके बाद सीवियर ड्रॉट जोन, दैट इज ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका प्लेट्यू, इंटीरियर तमिलनाडु, सदर्न झारखंड एंड इंटीरियर ओडिशा। और मॉडरेट ड्रॉट जोन में कौन सा रहेगा, तो नॉर्दर्न राजस्थान, हरियाणा, सदर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ गुजरात एक्सक्लूडिंग कोंकण, महाराष्ट्र, झारखंड, कोयम्बतूर प्लेट्यू, तमिलनाडु एंड इंटीरियर कर्नाटका। उसके बाद मोर देन 85% ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरी हाई और हाई ड्रॉट रिस्क कैटेगरी आर लोकेटेड इन बिहार। उसके बाद कहाँ, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तराखंड एंड हरियाणा। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रॉट, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेगा, तो एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट देखेंगे, दैट इज क्रॉप फेलियर कॉजिंग फूड्स अकाल्स एंड फॉडर, दैट इज त्रिकाल शॉर्टेज, जैसा होता है ना अकाल बढ़ा हुआ है, दैट इज अकाल एंड त्रिकाल। उसके बाद लाइफ स्टॉक लॉस, दैट इज हाई mortality rates among the cattle and other animals। फिर migration, that is movement of people and livestock due to the prolonged drought। और health risk में देखा जाए तो water scarcity lead to consumption of contaminated water causing diseases such as gastroenteritis and cholera and hepatitis। फिर causes of recurrent droughts in India, that is India's recurrent droughts are primarily due to the unique physical and climate vulnerabilities, जिसमें से लो रेनफॉल देखा जाए तो about 33% of the cropped areas receives an annual average rainfall of only 75 centimeter। फिर agriculture in this region have heavily depends on the rainfall due to limited irrigation coverage। और rainfall variability देखा जाए तो significant variation in annual, seasonal and regional rainfall pattern exists despite a high national average। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा approximately 73% of the annual rainfall occurs within the short period, that is less than 100 days during the southwest monsoon। उसके बाद uneven distribution, तो rainfall is unevenly distributed across different region और excess rainfall often leads to runoff instead of contributing to drought resilience through स्टोरेज। उसके बाद वाटर रिसोर्स चैलेंजेस देखा जाए तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इनसफिशिएंट कंजर्वेशन ऑफ सरफेस वाटर रिड्यूस इरिगेशन पोटेंशियल और पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन स्टडीली डिक्रीजिंग इवन ड्यूरिंग द नॉन ड्रॉट ईयर। अब प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, तो प्रेशर क्या रहेगा, तो माइग्रेशन ऑफ कैटल्स एंड लाइफ स्टॉक्स फ्रॉम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज स्ट्रेन्स रिसोर्सेज इन नेबरिंग रीजियन। उसके बाद इंटरनेशनल एफर्ट फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP, इन्होंने क्या किया था, लॉन्च द इंटीग्रेटेड ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज IDDP, which aims to strengthen resilience by working on twin vulnerability of poverty and unsustainable land management in the dryland। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, दैट इज UNDDR, ये इन्होंने क्या किया था, तो डेवलप किया था अ ड्रॉट रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर बोथ हायर लेवल एंड लोअर लोकल एक्शन। तो मतलब हाई लेवल में भी और लोकल का एक्शन क्या रहेगा फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज, तो उन्होंने भी एक डिज़ाइन किया था, किसने, तो UNDDR ने। उसके बाद 2013 में क्या हुआ था, द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WMO एंड ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप, दैट इज GWP, ये इन्होंने क्या किया था, ये लॉन्च
लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट इज IDMP टू एड्रेस ड्रॉट इश्यूज। उसके बाद द IDMP एंड इट्स पैटर्न हैव अडॉप्टेड 3 पिलर ऑफ ड्रॉट मैनेजमेंट। अब ड्रॉट मैनेजमेंट इंडिया में देखा जाए तो देयर इज नो सिंगल लीगल एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ ड्रॉट इन इंडिया। ठीक है, कोई भी ऐसा डिफिनेशन नहीं है। सम स्टेट रिजॉर्ट टू देयर ओन डिफिनेशन, तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं ना जो अपना अपना खुद से डिफिनेशन बनाए हुए हैं। जैसे कि देखो, ड्रॉट्स आर डिजास्टर दैट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2D ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें 2005 सुप्रीम कोर्ट इन स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 2016। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज NDMA, इसमें क्या हुआ था, टू बी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट मैनेजमेंट पर्टिकुलरली विद द रिस्पेक्ट टू chalking out the long-term preventing and mitigation measures. However, the state government concerned would be final authority to declare a drought. उसके बाद drought can be declared for particular village in a district or a तालुकास और तहसील और ब्लॉक। ओके, उसके बाद फ्लैश ड्रॉट्स। तो फ्लैश ड्रॉट क्या है जिसका डेफिनेशन देखा जाए तो फ्लैश ड्रॉट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड इंटेंसिफिकेशन पोजिंग सिग्निफिकेंट रिस्क टू एग्रीकल्चर इकोसिस्टम एंड वाटर अवेलेबिलिटी। उसके बाद अनलाइक कन्वेंशन ड्रॉट which develop over month or year, flash drought escalates quickly due to extreme weather condition and typically last from a few weeks to several month, जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो कैन बी लोकलाइज्ड और वाइड स्प्रेड और डेवलप एट अनयूजुअल फास्ट रेट और डिप्लीशंस ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन द टॉप सॉइल लेयर विच कैन एक्सटेंड डीपर इम्पैक्टिंग क्रॉप रूट्स जोन्स एंड वेजिटेशंस। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसको हम लोगों ने थॉरली डिस्कस किया है। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन इट एंड टिल देन I would be uploading the video lecture of chapter 6. Okay, hope you all are liking this video lecture and thanks.